Alright, welcome to a brand new episode of Incompletely Yours, Season 2। और आज का ये एपिसोड खास है क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ना मुझे एक चीज़ समझ आती है दैट कुछ एंगल्स हर कॉन्वर्सेशन में ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई एक्सपर्ट आए तो हम चीज़ों को थोड़ा बेहतर समझ पाए। एंड आई ऑलवेज से व्हेन वी मेक दिस एपिसोड विद ऑल माई गेस्ट्स दैट there has to be respect in how we live, there has to be dignity in our relationships, और exit अगर आपके relationship नहीं चलते तो divorces में भी वो dignity होनी चाहिए। और क्योंकि मुझे लगता है relationship को जब तक आप बचा सकते हो, शादी को जब तक आप बचा सकते हो, बचाने की कोशिश भी पूरी with dignity होनी चाहिए। Today on the show with me is Shaurya Gehlawat, she's a psychologist and also a couples therapist। तो हम आज शायद आपके लिए कुछ वो चीज़ें लेकर आए हैं जिसके लिए आप एक्सपर्ट ढूंढते हो। Sometimes therapy is expensive, but you've got it all here। Shaurya, thank you for joining in and you have a beautiful name. Thank you so much for having me. मतलब मैंने जब आपका नाम पढ़ा था ना, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, and I just wanted to say, you know, I've realized that the names on the show have been so special. मतलब मैं अभी से लेके season 1, season 2 देखो, people have come with some really nice names and nice meanings. Compliment मिलता रहता है? काफ़ी and पहले तो confusion होती थी because it's a unisex name. Yes. So most people would say, can we talk to Mr. Shaurya? I'm like, हाँ ठीक है Mr. बोल दो. When you see me, you'll see no less than a man. I like it and I like the fact that एक लड़की का नाम शौर्य है. I mean, the world's changing. Shaurya, so you know the episode, the season, Incompletely Yours, मेरी खुद की जर्नी से पैदा हुआ एक आइडिया था. क्योंकि divorces I realized, say in year and a half when I got separated, was painful. वो 10 साल पहले भी painful थे और 10 साल बाद भी no matter how cool we think we are, like a lot of people on social media think it's all about money, but जिनका दिल और घर टूटता है ऐसे वही जानते हैं, it is very very painful. एक generic सवाल से शुरू करते हैं before I move into detailed सवाल. There are a lot of people who might be coming to you, couples who are coming to you, कि कुछ बच जाते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं. Why do you think are the reasons, divorces इतने क्यों बढ़ रहे हैं? I know it's very generic, but by the kind of people that you meet every day, what is it? Is it the ego? Is it the arrogance? Is it like a lot of people say लड़कियां कमा रही हैं? It's all of that. I know it's a generic question, but I'll try to answer one by one. First, we have more awareness कि रोटी कपड़ा मकान तो मैं खुद भी कमा लूँगी. What am I getting from you? 30 years ago, 60 years ago, women were not working, not earning, not educated. They were completely dependent on the husband. They had very less options to do something. Yep. Today, women know that education, money, support, I can find for myself. How are you adding on to my life? Are you helping me emotionally, mentally, spiritually, physically? If yes, I will feel seen and heard. पर अगर मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ होके भी अकेली हूँ, आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करने के बाद भी मुझे सोल्यूशन तो खुद ही ढूंढना है, then I don't feel seen and heard, I don't feel understood, I don't feel respected. दैट इज़ वन. तो लड़कियां कमा रही हैं, येस, इससे डिवोर्स हो रहा है, पर सही रीज़न की वजह से हो रहा है, गलत रीज़न की वजह से नहीं. सेकेंड, देयर इज ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक दिस वर्क दैट आई वुड रादर गेट डन विद इट. कि इस शादी को चलाना, टू गो थ्रू विद दिस मैरिज इज सो हार्ड, इट्स सो पेनफुल एवरी डे, एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू दिस पेन एवरी डे. मेरा अब हो गया. और ये दोनों जेंडर्स के लिए एप्लीकेबल, एक्चुअली ये सारे जेंडर्स के लिए एप्लीकेबल है. एंड टू सम एक्सटेंट दैट ऑल्सो माइट बी ओके. देर इज़ अ लिमिट टू हाउ मच पेन यू कैन सी. अगर आप डॉक्टर के पास भी एक बॉडी एक के साथ जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा बेटा 1 हफ्ता हो गया है, अब पेन किलर खाओ, ब्रेक द साइकिल ऑफ पेन. अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा आराम दो. You can't go through with pain every day for the rest of your life. That's another reason. The third reason is awareness. पहले लोगों को लगता था कि इसका मतलब क्या है, डिवोर्स, व्हाट इज डिवोर्स. उस गांव में, उस शहर में, उस देश में कभी किसी ने किया था. अब ऐसा नहीं है. अब हमें पता है दैट डिवोर्स इज एन ऑप्शन एंड यू मस्ट टेक दैट ऑप्शन इन केस द मैरिज इज अब्यूजिव, इन केस इट इज टॉक्सिक, एंड इफ इट इज बियॉन्ड रिपेयर. द फोर्थ रीजन आई वुड से इज इम्पेशंस. बहुत बार, एटलीस्ट विद अ लॉट ऑफ यंग कपल्स दैट आई वर्क विद, उनको शादी में आज वो चाहिए जो उनको 10 साल, 20 साल, 30 साल की शादी के बाद मिलेगा. वी वॉन्ट दैट फ्रॉम द डे वी मैरी. जब तक वो इंस्टाग्राम की पिक्चर परफेक्ट रील बने तो हमारा रिलेशनशिप जो हमें 30 साल की अंडरस्टैंडिंग के बाद बनता है वो आज ही हो जाए. तो एक इम्पेशंस भी है. एंड आई कांट रियली ब्लेम पीपल. जब सब कुछ एक क्लिक पे हो रहा है, चैट जीपीटी, ब्लिंकिट, सब कुछ तो अभी मिल रहा है, तो हस्बैंड वाइफ भी बने बनाए फटाफट मिल जाएं.
But that is so true and that is so well said. And that was like, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं एक थेरेपी के लिए जब जाती हूँ ना, जब एक एक पॉइंट से समझाते हैं, बिल्कुल वही हुआ है. एंड बिकॉज यू मेंशन्ड इंस्टाग्राम रील्स, सोशल मीडिया हैज़ बिकम लाइक अ बुली. मतलब अगर आप अभी सेलिब्रिटी कपल्स को देखोगे, एंड बिकॉज इट्स वेरी रीसेंट, जैसे धनुश्री और यूजी का हुआ है, we will never know who's right, who's wrong. Yeah. I also believe, as somebody who's been divorced, that किसी और का जानना ज़रूरी भी नहीं है. दो लोगों ने कोशिश की, नहीं चला, वो उनकी मर्जी है. मम्मी पापा और बच्चों को भी नहीं पता होगा कि किस हद तक उस रूम में क्या हुआ है. But we've all been a judge. And I think I would want you to tell me, वो किस लेवल पे किसी को इम्पैक्ट कर सकता है यार साइबर बुलिंग. वैसे भी अगर मुझे लगता है, नॉट डिवोर्स, विद विमेन, कैरेक्टर असैसिनेशन, आंटी, बॉडी शेमिंग, स्किन शेमिंग, ये सारी चीज़ें होती है. हाउ डज दैट चेंज अ पर्सन? लोग कहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई कैन टेल यू एज समबडी हुज़ गॉट अ सोशल अकाउंट एज वेल, बहुत फ़र्क पड़ता है. नींद उड़ जाती है कई बार, ऐसी चीज़ें लोग लिख देते हैं. सो आई एम श्योर व्हेन पीपल कम टू यू एंड रिलेशनशिप टूट गए, ब्रेकअप हो गए, डिवोर्स हो गए, लोग क्या कहेंगे, अब सोशल मीडिया पे क्या लिखूंगी, ऑल ऑफ दैट, डज दैट ऑल्सो क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ साइकिल इन पीपल्स हेड? I want to go back to a comment that I made on your video. आपने एक वीडियो डाला था about things that you should not do with a relationship or a partner, and वहाँ पे I made a comment saying कि ये दो तीन words भी हैं जो आप avoid कर सकते हो. फिर आपको याद होगा some random person said, I don't know, go wash your face, और अपने बच्चों को सिखाओ, हमें मत सिखाओ. And then I have of course become expert at ignoring bullying, but then you said shame on you. And I felt so proud. We women, we need that camaraderie, right? That okay, if one person is ignoring, I'm going to say something. But that happens irrespective of how you look, what you do, where you come from, how tall you are, how much money you earn. It doesn't matter. Going back to how does this affect? I was working with a person once in individual therapy who was recently divorced, and they are kind of a public figure in the social media space. उन्होंने मेरे साथ 3 महीने बैठ के सिर्फ वो परफेक्ट पोस्ट लिखा है to put on their social media that my partner and I are no longer together. We have mutually decided this is out of respect. Please help maintain our privacy. Please give us some space, etc. That's how bad it is. Yeah, that's how bad it is. That's how bad it is. 3 months that person had to take because वो usually अपना कुछ भी फोटो वीडियो कुछ भी डालने से पहले वो नहीं सोचते थे. अब सोचना पड़ रहा है. अब डिवोर्स का अनाउंसमेंट के लिए आपको सोचना पड़ रहा है बिकॉज सम और द अदर पर्सन विल से सम शिटी कमेंट एंड दैट विल इम्पैक्ट यू सो बैडली. आपको इनफैक्ट आई हैव सीन नाउ पीपल आर टर्निंग ऑफ कमेंट्स ऑन दीज पोस्ट्स कि प्लीज लीव अस अलोन, यू हैव नो आइडिया. You know that's a tip that since you brought it up, it's a tip that I very often give, especially to not just my clients and patients, even otherwise. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. इवन इफ आप बुर्का पहन लो, आप फुली कवर्ड रहो, फिर भी लोग बोलेंगे. यू आर मैरिंग वंस, लोग बोलेंगे. यू आर डेटिंग, लोग बोलेंगे. यू आर इन अ लिव इन, लोग बोलेंगे. यू डिडंट मैरी बट यू अडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो लोग बोलेंगे. पीपल हैव टू से समथिंग इररिस्पेक्टिव. सो फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक दैट रिमाइंडर फॉर पीपल लाइक अस एंड एवरीवन वी नो इज ऑल्सो नीडेड कि वी विल टेक अ डिग एट यू इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू. Yeah, that's so true. आप कुछ भी करो, वो 4 लोग बोलेंगे ही बोलेंगे. बट शौर्य, अगर ब्रॉडली समझा सके बहुत लोग जो देख रहे हैं, एक कपल थेरेपिस्ट एग्जैक्टली व्हाट इज इट दैट यू डू? जब हम बोलते हैं हमें कपल थेरेपी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, व्हाट इज अ कपल थेरेपिस्ट डू? So I'll tell you generic, then I'll tell you stage of couples. जैसे obviously what a couples therapist will do will depend on the stage of the relationship of the couple. हाँ, ये सॉरी, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज कई बार जो लोग ये देखते हैं वो किसी और से बात नहीं कर पा रहे होते. सो दिस इज दैट होल इमोशनल सेफ स्पेस वेयर एटलीस्ट पीपल नो कि अच्छा मैं जो सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ मैं ठीक सोच रहा हूँ. अब शायद एक कपल थेरेपी हेल्प करे. सो एग्जैक्टली कपल थेरेपिस्ट क्या कर सकता है इन लोगों के लिए? They will help the couple strengthen the relationship. हम born partners नहीं होते हैं, हम born husbands and wives नहीं होते हैं. Nobody teaches us how to be a husband or wife. स्कूल में जाके आपको मैथ सिखाएंगे, फिर टेस्ट लेंगे. यहाँ पे क्या करेंगे, पहले शादी हो गई अब देखते हैं क्या निकल के आता है. और फिर फ़ोन पे और बात होते हैं, उसकी कैसी चल रही है, उसकी कैसी चल रही है. आपने ही उनको पहले स्विमिंग ना आते हुए पूल में डाला और फिर आप बोल रहे हो कि वो स्विम कर पा रहे हैं कि नहीं. इसमें क्या मज़ा आ रहा है आपको? So there's no one to teach someone how to be a partner, how to be a husband or wife, and that is what couples therapists will do. How can you be a better partner? अब उसमें क्या क्या आता है? पहले तो आता है कम्युनिकेशन. आप एक दूसरे से बात कितना करते हैं, करते हैं भी कि नहीं करते.
अगर करते हैं तो किस तरह की बात करते हैं? प्लम्बर आया कि नहीं, फ़ैन ख़राब हो गया, आज आज उनके बच्चे का बर्थडे है, आज इनका फ्यूनरल है। दिस सो वेरी टास्क ओरिएंटेड, वेरी चोर ओरिएंटेड, वेरी लाइफ लॉजिस्टिक्स ओरिएंटेड। तो डेप्थ है कि नहीं आपकी कॉन्वर्सेशन में? Yeah. कैन आई लुक एट यू एज जस्ट माई पार्टनर एंड नॉट लाइक अ टास्क मास्टर, यू नो, कि Yeah. मैं आपको बता रही हूँ अब ये करो वो करो। Yeah. सेकंड, लड़ रहे हैं तो कैसे लड़ रहे हैं? एक दूसरे की इज्जत करते हुए लड़ रहे हैं या बिलो द बेल्ट फायर करे जा रहे हैं? कैन यू स्टिल बी काइंड एंड लविंग व्हेन यू आर फाइटिंग? थर्ड, हाउ इज द फिजिकल इंटीमेसी? Are you touching each other? Are you holding each other's hands? Is sex a problem? Are you enjoying sex? Is it just as a tick mark? Or is Yeah. it something that you truly like? Yeah. How are you with in-laws? Both sides of the parents and in-laws. That's true. एक साथ एक तरफ ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। एक तरफ एक के बारे में ज़्यादा अच्छा बोला जा रहा है, दूसरे बारे में नहीं बोला जा रहा है। Children, parenting. Yeah. Whether you've decided to be child free or have children. Yeah. One child, how many children? Something like that. Basically, आप प्यार कैसे कर रहे हैं और आप लड़ कैसे रहे हैं, ये दो चीज़ें कपल्स थेरेपिस्ट विल हेल्प यू स्ट्रेंथन एंड इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट. Because I see a lot of messages coming in from people जो यही लिखते हैं कि it's become lifeless but we love each other. I still don't know how if it is lifeless you still love each other. I don't know. Except for abuse and extreme toxicity, anything can come back. तो अब्यूज़ अगर नहीं है, बहुत एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी नहीं है, तो कोई भी मैरिज कैन एब्सोल्युटली वर्क आउट. द सेकेंड थिंग अबाउट बोर्डम, हम कोई भी चीज़ रोज़ करेंगे ना हम बोर होंगे. That's कोई true. भी. ऑफिस जाते हैं रोज, we know it. That's true. That's true. अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी चीज़ जो हम बार बार करेंगे उसी से मास्टरी आती है. Jesus, yeah, that's true. और मास्टरी ना बहुत बार बोर्डम ले आती है बहुत लोगों के लिए, कि अब तो पता है ये कैसे करना है. Yeah. एक कपल था, दे वर थिंकिंग ऑफ मैरिंग एंड द गर्ल सेड दैट ये अब वो एफर्ट्स नहीं करता लाइक जो पहले रिलेशनशिप में करता था. Yeah. एंड उस द पर्सन सेड मजाक में, बट ही सेड तो अब तो तू पट गई ना. उन्होंने मजाक में बोला, बट कहीं ना कहीं ह्यूमर ऑल्सो हैज सम ट्रूथ बिहाइंड इट. Yeah. तो कभी कभी जब हमें लगता है कि हमें डेस्टिनेशन मिल गई, किसी के लिए डेस्टिनेशन शादी हो सकती है, बहुत लोगों के लिए एक्चुअली शादी डेस्टिनेशन ही है. Yeah. लोगों को लगता है कि शादी हो गई तो सब हो गया. I heard so एक्चुअली many लाइफ people तो say- उसके बाद शुरू होती है. ये लोग शादी करने के बाद ही समझते हैं कि अब तो शुरू हुआ है सब कुछ. It is just the Yeah. start. That's true. एंड Yeah. बोर्डम, आप ऑफिस जाते हो आप बोर हो गए, आप रोज मैथ्स पढ़ते हो आप बोर हो गए, Yeah. आप रोज वर्कआउट करते हो आप बोर हो गए. कितने लोग एक तरह का वर्कआउट करके बोलते हैं अब हो गया यार, कोई और वर्कआउट लेकर आओ. Yeah. The only thing that you have to remember is that when you marry a person, you marry 800 versions of them. तो ये कभी मत सोच लेना, मास्टरी वाली चीज़ मत सोचना कि अब तो हमें पता है. Now we know each other. No, you never know. Yeah. Because the person is changing every day. मैं आपसे 1 महीने बाद मिलूंगी दिव्या, आप और मैं अलग लोग हैं. फिर 1 महीने बाद हमारा डायनामिक भी अलग हो जाएगा. That is so true. Be curious about your partner. That really helps. Whether it is physical or emotional or mental. बट अगर इमोशनल अब्यूज़ है, मेंटल अब्यूज़ है, पहले तो घर के अंदर अब्यूज़ है. एंड देन इफ अ पर्सन ट्राइज टू से और वुमन ट्राइज टू टेल हर पेरेंट्स और से फ्रेंड्स और कलीग्स, अब क्योंकि आपके चोटें तो है नहीं चेहरे पे क्योंकि पिटाई नहीं हो रही है तो दिख नहीं रहा है. तो दिख नहीं रहा है, बट अब्यूज़ तो है. वेदर इट्स फाइनेंशियल अब्यूज़ ऑल्सो टू ग्रेट एक्सटेंट, Sexual abuse. सेक्शुअल अब्यूज़, वो उसकी तो चोटें आप कैसे दिखाओगे. एंड फाइनेंशियल, यू अर्न से अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बट यू हैव नथिंग इन योर हैंड, दैट सॉर्ट ऑफ अब्यूज़ इज आप फिर मांग ही रहे हो, या आप डेट में जी रहे हो. आप डेट में जी रहे हो. एग्जैक्टली. तो आप इस इंसान का हाउ डज दिस पर्सन फंक्शन, बिकॉज वन देयर इज अब्यूज एंड सेकेंडली नोबडी बिलीव्स हर और हिम. Yeah. What happens to this person? And I'm telling you, there are a lot of people who will be watching this, and I know for a fact that ये बहुत common है क्योंकि emotional course. mental harassment तो prove करना is like so difficult. What happens to this person? मतलब और ये बोलूँ अगर कि अगर कोई देख रहा है मे बी सिचुएशन में है, क्या कर सकते हैं, कर सकती है? हमने अपने क्लाइंट्स और पेशेंट्स से ये सुना है और हम काम भी करते हैं इसी चीज़ में. क्यों? Yeah. क्योंकि दिस पर्सन इज़ नाउ ऑल अलोन. सबसे पहला तो ये होता है, Yes. अब मैं किसको बोलूँ, किससे शेयर करूँ, कोई मान नहीं रहा है, कोई प्रूफ मांग रहा है. अब मैं वापस से 30-60 ईयर्स पहले जाऊँगी थोड़ा सा. जैसे हमने बोला कि पहले था दैट वुमेन वर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट, पराया धन,
अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजियो, यू नो ऑल ऑफ दोज Yeah. एक्सट्रीम पेट्रियार्की कि आप हमने जब कन्यादान एज अ कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी पेट्रियार्कल, राइट? हस्बैंड टू सॉरी फादर टू हस्बैंड. Yeah. जब आप वो देखोगे जहाँ पे आपको ये लगेगा दैट द फीमेल इज एन ऑब्जेक्ट Yeah. एंड नाउ द फीमेल हैज़ गॉन, एंड पेरेंट्स बोल के भेजते थे वापस नहीं आना. वो चीज़ जब हमने तब देख ली, हमारा ब्रेन तो वही वही सुनता आया, चाहे किसी भी वूम्ब में, चाहे जो भी हमने हमारी वायरिंग हुई, तो हमें ये लगने लग गया कि पहले ही हमारे पास शायद सपोर्ट नहीं है. और दूसरी चीज़ हमने ये ज़्यादा देखी है कि ये लोगों को लव मैरिज में ज़्यादा लगता है. आई हैव सीन both men and women, and in this case I will say more men, when a man fights with his family to marry a girl, and when he has to fight a lot कि मान नहीं रहे हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो, तो फिर ना उसे ये लगता है कि अब जब मैंने इससे शादी कर ली इतना लड़ झगड़ के, तो अब मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि प्रॉब्लम है. ये तो बोलेंगे तू नहीं बोला था, हमने तो मना किया था. क्या वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, आई टोल्ड यू सो, हमने तो हाथ खड़े कर लिए, हमने तो आपको पहले बता दिया था. और ये करने में सोसाइटी बहुत बहुत तेज है. हमने तो बता दिया था, ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो सुनती ही नहीं घर है. वाले ही सबसे पहले. आई अंडरस्टैंड. आपका फियर यही होता है, अब कैसे बोलूँ कि मेरी चॉइस थी और वो खराब हो गई, हाँ माई डिसीजन फेल्ड. हाँ, क्योंकि हमें किसी ने ये भी नहीं सिखाया है कि आप एक चॉइस करके अपना माइंड चेंज कर सकते हो. हमें ये भी नहीं पता. हमें लगता है कि अगर हमने बोल दिया 11th में साइंस पढ़ेंगे, तो 12th में ये नहीं बोल सकते कि अब मैथ्स नहीं हो रही. नहीं, ऐसे कैसे. Yeah, that's true. So the first thing that happens is the person feels very alone and the person feels very judged. And more in love marriages, I have had clients who are on the verge of, you know, they're talking to people, they're meeting people. They have told me कि अरेंज मैरिज ही कर लेते हैं, कम से कम कुछ गलत होगा तो मेरे पे उंगली नहीं उठाई जाएगी. पर इमेजिन नो कि शादी होने से पहले ही हमारे माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि अगर टूट गई, वी आर एनीवेज थिंकिंग ऑफ एन इवेंचुअलिटी, तो ब्लेम गेम वहाँ हो जाएगा. डर भरा हुआ है. Yeah. I have people between 25 to 35 who sit with me and they say मुझे शादी करनी ही नहीं. I've never seen a good marriage in my life. My parents used to fight. ऐसे लोग हैं जो सुबह पूरा बचपन उनका पैनिक अटैक में उठा है कि अब लड़ाई होएगी, किस बात पे लड़ाई होएगी, कौन किसको क्या बोलेगा, मेरे पे क्या ब्लेम आएगा. Yep. थर्ड, आसपास के लोग हमसे 2 साल बड़े हैं, 3 साल बड़े हैं, उनका डिवोर्स हो गया, अब इसका डिवोर्स हो गया, अब उसका डिवोर्स हो गया, तो उनको डर इतना है कि डिवोर्स की प्लानिंग या डिवोर्स के लिए सेफ गार्डिंग, सेफ प्रूफिंग, इट्स हैपनिंग मच बिफोर एज यू राइटली सेड. अब अगर ऐसे इंसान को जिसको पहले से ही डर लग रहा था, बड़ी मुश्किल से तो उसने शादी करी. आजकल आप किसी को जाके बोलो शादी करनी है, नहीं, लिव इन कर लेंगे. Committed, no. Fear of commitment, no. क्यों? Because you see so much happening around you and you now know the effort. पहले ना लोगों को पता नहीं था कि बहुत एफर्ट लगता है. अब लोगों को ये भी पता है कि एफर्ट लगता है. फिर लोगों को लगता है इतना एफर्ट. Yes. Now after all of this baggage, you don't get supported when something is going wrong. You are alone. And you feel मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ करा होगा. And then suddenly you have to gather so much courage to say कोई मेरे साथ नहीं खड़ा तो भी मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ी हूँ. I will still choose to be by my side. I will still choose to be my best friend because शायद मुझे समझ में आ रहा है. And that's what I say, you know, people who are sitting and judging outside और सोशल मीडिया पे जब आप लोगों के कमेंट लिख रहे हो, आपको नहीं पता दूसरों के घर में शायद एक थप्पड़ ही पड़ा हो कभी, वो आपके सामने नहीं पड़ा है, पर वो क्या इम्पैक्ट करता है एक थप्पड़ भी अगर पड़ा है तो. पावर, कंट्रोल, रेज, ह्यूमिलिएशन, mental illness, helplessness, no space. Yeah. वो एक थप्पड़ नहीं है. That has been backed by so much. Yeah. Yeah. And the minute you आपको जब ये लग जाए ना कि आप किसी को मार सकते हो, तो आपने अपने माइंड में ना उनको अपने से कम बना लिया है. And I am not, let's say, pro females and against men. Females also. Even when females are hitting anybody, बच्चे को ही मारते हैं लोग. हम तो बोलते हैं बच्चे को मारना भी सही नहीं है. किसी को भी अगर आप मार रहे हो तो आपके हिसाब से आप उनसे सुपीरियर हो, वो आपसे इन्फीरियर हैं. और मैरिज तो वैसे ही इक्वल रिलेशनशिप है, तो इक्वालिटी तो भूल ही जाओ. और एक बार वो लूज हो गया, इट विल हैपन अगेन, आई गारंटी. सेकेंड, अगर एक बार हो ही गया तो सेकेंड टाइम के लिए क्यों वेट करना है? इफ समवन इज सेइंग आई एम पावरफुल, आई विल डोमिनेट यू, यू आर लेसर देन मी, बी ह्यूमिलिएटेड. चाहे वो बंद कमरे में हो रहा हो, चाहे वो 100 लोगों के सामने हो रहा हो. देयर इज ह्यूमिलिएशन, देयर इज रेज, एंड एज आई ऑलवेज से,
there is mental illness. I was working with a couple recently where the man had hit the wife a few times. When he did that, the wife also started hitting him back. So it became mutually abusive now. And I asked कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? तो they said शादी के दूसरे दिन शुरू हुआ. Oh Lord. They've been married for 10 years. शादी के दूसरे दिन शुरू हुआ. The husband is hitting the wife. Wife ने 2 या 3 दिन बोला ठीक है मैं पिट गई. अगले हफ्ते से आई एम ऑल्सो डूइंग इट. हाथ से नहीं, बेलन से, चाकू से, जो भी मिल रहा हो दे आर डूइंग दिस बिकॉज पहले तो हमने लव मैरिज करी है, कैसे छोड़ दें एक साथ डिसाइड किया था. आई डिसाइडेड टू आस्क द मैन, कैन यू टेल मी इफ यू वर हिट एज अ चाइल्ड? नो, आई वॉजंट. कैन यू टेल मी इफ यू वर अब्यूज्ड इमोशनली? आई डोंट थिंक सो. क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है. देन आई आस्क दैट पर्सन, क्या आप घर में रहते थे? नहीं, बोर्डिंग स्कूल. आई सेड बोर्डिंग स्कूल में with so many men, were you sexually abused? And he said yes. So even when someone is hitting, वो पेन में है, वो स्ट्रगल में है, उनका ट्रॉमा उनके साथ चल रहा है, वो दर्द में है. तो अगर वो दर्द में है, वो आपके साथ, वो आपको कैसे हेल्प कर पाएंगे जब वो खुद इतने परेशान है? तो वो एक थप्पड़ जो आया है ना, वो आपको पता ही नहीं कितने साल पुरानी बात वो आज निकली है. And that person deserves help, and you probably need reinforcement that आपकी गलती नहीं है, but let this person be alone, let them get the help they need. So in that case, 10 साल की शादी जिसमें दोनों म्यूचुअली अब्यूजिव है, बट बिकॉज एक प्रॉब्लम स्पॉट हुई है, like I say, we might work upon and the couple just might be in a better space. Might be. But वो पॉसिबिलिटी खुल जाती है क्योंकि प्रॉब्लम मिल गई है. हाँ. एंड ऑल्सो शौर्या, लेटली हम जिस टाइम पे बात कर रहे हैं, और मैंने ये ट्रेंड, या मैं ये कहूँ कि पिछले 6 महीने बहुत मैसिव शिफ्ट देखा. देयर बीन लॉट ऑफ सुसाइड्स. इनफैक्ट यू नो, व्हेन आई थॉट ऑफ दिस सेशन, मैंने इनिशियली यही सोचा था दैट सुसाइड इंटरवेंशन या लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज़ बियॉन्ड मैन एंड वुमेन डिबेट. इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग कि वो पॉइंट आ ही क्यों रहा है where you know men are choosing to give up on their life. Yeah. Is it lack of support at home? Is it parents not hearing? Partner तो चलो जिससे बन ही नहीं रही, जो हम बोल ही देते हैं जैसे शादी नहीं सब खराब किया है, ये सब किया, बट बाकी जगह पे तो यानी सपोर्ट नहीं मिली ना. इतना अकेला हुआ कैसे वो आदमी? क्योंकि आपको ये भी तो नहीं पता था कि आप कहीं से सपोर्ट ले सकते हो. पहली बात. दूसरी बात, अगर आपको पता भी चला तो आपने वही, या तो मर्द को दर्द नहीं होता है, या कोई और मुझे क्या बता देगा, हाउ कैन अ स्ट्रेंजर हेल्प मी, या द कंडीशनिंग. The same thing, right? You have to be the protector, you have to be the provider, you have to be strong and masculine. Strong and masculine means you can't cry, you can't have a problem. Yeah. आप कहीं पे भी 2 आदमियों को या ग्रुप ऑफ आदमियों को बात करते हुए सुन लो. काम, स्पोर्ट्स, दारू, सिगरेट, गाड़ियाँ. Yeah. You will not listen to them having an actual conversation. And I'm not saying कि इन सब चीज़ों से बात करके उनकी हेल्प नहीं होती. बिल्कुल होती है. वो लोग इसी पे कनेक्ट करते हैं. Yeah. लेकिन फिर वो डीप कॉन्वर्सेशन कहाँ गई? And you hear women talking and you see they talk about emotions, feelings, what am I feeling, what am I not feeling. And ये भी ना, again this is also linked to Stone Age, because the men were hunting in packs. So all that they were doing was, आज हमको प्रे लेके जाना है वापस घर. Yeah. हमारी लेडीज खाएंगी, बच्चे खाएंगे. Yeah. तो बात होती थी ऐसे, वो टीम स्पिरिट वाली, ऑफिस वाली, स्पोर्ट्स वाली. और फिर जब आप वापस आ गए हैं, then you need the फायर गेजिंग मोमेंट, बिकॉज नाउ यू नीड टू अनवाइंड. तो फायर गेजिंग क्या था? आपने आग जला लिया, आप आग को देख रहे हैं, आप कुछ सोच नहीं रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं. जो आज के ज़माने में शायद वीडियो गेम है, दारू पीना है, नेटफ्लिक्स देखना है. So chill. Unwind. Mindless. Even scrolling. Mindless scrolling. So men were always, we will be in packs, we will do our work and that's it. Ladies and females घर पे क्या कर रहे थे? Talking to each other. कभी गाना गा लिया, कभी डांस कर लिया, कभी एक दूसरे की हेल्प कर दिया, आज मैंने खाना क्या बनाया, तुमने. सो women were more emotionally charged and regulated that way. अब लेकिन पहले हमारे 2 स्ट्रेस थे इस स्टोन एज में, एक तो वाइल्ड एनिमल्स और एक वेदर. That's true. तो उस टाइम पे चल जाता था कि आपने इमोशन की बात नहीं करी क्योंकि शायद ज़रूरत नहीं थी. अब एवरीथिंग इज़ अ स्ट्रेस. सुबह से जब आप उठे हैं से लेके रात तक, अब स्ट्रेस बढ़ गया है, टेंशन, एंग्जाइटी, फीलिंग लो, everything has increased so much that now if you don't talk, if you don't share, if you don't express, if you don't regulate, you will be so much in solitude. Yeah. इतना helpless और restless लगेगा आपको. Yeah. And because men don't know, they might just resort to something that we don't want.
बात करना ज़रूरी है. You know, the bottom line is कि घर पे पहले तो वो comfort रहना चाहिए लड़कों के लिए. I think from the childhood way, they can also talk just like girls do. लड़की रो देती है तो हम बोलते हैं strong बनो. लड़का अगर रो दे तो लड़का रो कैसे सकता है? I think we just need to get done with these dialogues. रो रहा है रोने दो, सुन लो. Sure, एक चीज़ पहले तो cheating की बात करती हूँ, फिर then I'll come back to this. Physical, I mean infidelity. Yeah. आप extra marital हो जाए, आपका affair हो जाए, one night stand हो जाए, एक वो चीज़ होती है और एक emotional infidelity भी है. What leads to both? Is it I don't know. And then I've heard people saying बस वो one off था, but I love her. But फिर वो slip कैसे आ जाता है? The शादी में कोई, I mean, what happens? And is it a pattern? Once a cheater, the trend continues. Is there a formula or a pattern to it too? So I'll break down your question. For emotional infidelity, what is emotional infidelity? You are talking to someone else more. You are sharing with someone else more. You are having a deeper connect, a bond with someone else more, except for your own partner. Yeah. जहाँ पे आप और इसके लिए ना माइंड में घंटी बजती है. ऐसा आपको नहीं है. पता होता है. हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होता. You know कि आप अपना फ़ोन छुपा रहे हो, लॉक कोड चेंज कर रहे हो, चैट को आर्काइव कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो. इफ़ यू आर डूइंग या उस इंसान का नाम ऑफिस के किसी कलीग के नाम से सेव कर रहे हो. Yeah. इफ़ यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, you already know that emotional cheating has started. Yeah. और ये जो बोलते हैं ना कि मुझे पता नहीं चला, bullshit. Yeah. You know. Yeah. You know, but you are choosing it because at that time that feels right to you. It feels pleasurable to you. It feels joyful to you. जो हम boredom की बात कर रहे थे उससे spark आ गया Yeah. आपके life में. That is emotional cheating. Now, what leads to emotional cheating? Multiple things. It can start from your unmet needs in your own relationship, where you don't feel seen, heard, respected, valued and appreciated, but कोई और है जो कर रहा है. Yeah. Second, the amount of time. Now, unfortunately, corporate society is wired in a way that you spend more time at work than with your own family. So bad, right? Yeah. But you end up spending more time at work than with your family. तो जिसके साथ आप ज़्यादा time spend करेंगे, आपका बात भी उसी से करने का मन करेगा, आपका bond भी वहीं build होगा. That's true. Third, you are your best self in front of someone else, but with your own partner, you are lazy. With your partner, you may, not always, but you may end up showing your worst sides. You know, you may show anger, you may show boredom, you may show not grooming, not wearing the best clothes, but the minute you're out of the house, oh, spick and span perfect, both for males and females. Yeah. Which also means कि आप दूसरे इंसान का भी best side ही देख रहे हो. Yeah. The same thing जब आपके partner के साथ, let's say if you were dating or if you were in a courtship, even if it was an arranged marriage, you saw their best sides, which is what led you to say yes. Yeah. In a marriage, you will see all sides. Best कम दिखेंगी, बाकी ज़्यादा दिखेंगी. Yeah. आँख खोलने के Yeah. बताना पड़ता है कि देखो ये भी है. बट बाहर आपको सिर्फ बेस्ट साइड्स दिख रहे हैं. यू आर सीइंग द पर्सन वेल ड्रेस्ड. आप जब बाहर हैं, काम पे हैं, पार्टी में हैं, जिम में हैं, आप अपने मुंह पे भी फिल्टर लगा के रखते हैं. आप Yeah. बहुत अच्छे से बात करते हैं. That's true. घर पे नहीं होगा ऐसा. When you are seeing that you are a different person with someone else और कोई और भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको उनसे अट्रैक्शन हो सकता है. होएगा ही एक्चुअली, एज ह्यूमंस होएगा ही. The only difference is, do you act on it or do you not act on it? We can't say that if you are married or if you are in a monogamous long-term committed relationship, you're not going to be attracted to other people. That's not how it works. Yeah. But how much do you act on it? तो इमोशनल चीटिंग यहाँ से शुरू हो गई. बात करने का मन कर गया, चैट हाइड कर रहे हैं. कोई भी लाइफ में अच्छा बुरा कुछ हो रहा है तो यू वांट टू टेल दैट पर्सन एंड नॉट योर पार्टनर. तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से दिस हैपन्स. इट ऑल्सो हैपन्स बिकॉज you have kind of maybe given up on your current relationship. Yeah. कि यहाँ से तो वो नहीं मिलना, यहाँ से वो प्यार, मोहब्बत, इज्जत, appreciation, respect, regard नहीं मिलना. I will not be my best self, my partner is not being my best self, but let's do it somewhere else. So there are three categories: how you are, how your current relationship is, and how that person जिसके साथ cheating हो रही है, the relationship is developing. Yeah. ये सारे same reasons almost physical में भी applicable हैं. We think sometimes physical infidelity is about looks. People are shocked when I tell them only 30% is looks. बाकी सब mind में चल रहा है. Yeah. Let's say if you're working with someone on a project at work, right? You have that camaraderie, you have that shared goal, you're spending so much time with them. Yeah. You are feeling attracted to their best side and you're also showing your best side. Yeah. They may not even look in your head as good as your partner. Yeah. But looks don't matter. Clothes don't matter. Body doesn't matter. Yeah. So physical may happen because of these emotional reasons. Yeah. Or physical may just happen because, again, how your current relationship is. Yeah.
maybe your sexual needs are not being met there, or maybe you both are not sexually compatible. That is also normal, वो भी हो सकता है. Compatible नहीं है, or you're not making time for sex, you're not enjoying it, you don't think your partner respects your sexual desire, or both of you have a different sex drive but you feel like that with someone else. Yeah. So mostly काफ़ी interrelated reasons हैं दोनों के. Now coming to that point कि एक बार करा but I love this person, तो वहाँ पे ना आपका माइंड फिर चलने लग जाता है. Yeah. जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि आई वॉज ड्रंक, या मैं नशे में थी, मैं नशे में था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया. Yeah. नशे में होने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, अनलेस ऑफ कोर्स यू हैव बीन ड्रग्ड. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रेप. Yeah. इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पता, बट आपने अपने नर्वस सिस्टम को बोल दिया कि अभी बंद हो जा. You know, I want to do the irrational side of me. I don't want to do the rational side of me, because rationally you know, unless it's an agreement that you both are in an open relationship or an open marriage, you know that monogamous exclusivity means that we're just with each other. True. Then when they say that this happened once, but I still love that person, that's actually even true. You still love that person, but फर्क क्या है? When you had to make a choice, you acted on it. The love might be there, but if there was a, in your words, slip up, Yeah. there is a likelihood that it might happen again. Once a cheater, always a cheater, maybe not. A lot of couples recover from infidelity. They strengthen their relationship, they talk about it, Nice. they have boundaries, and they do it. And so many couples that I work with have had infidelity, but they've come out stronger. Once or twice on one end of the partner is different. Repeated, not really. Repeated infidelity, I had a couple I was working with last year. They decided that we're going to be in an open marriage, and that's going to be our agreement. Let's accept. So open marriage is okay. Both of us can have our own thing and we come back home to each other. Yeah, we are married, you are my husband and wife, but I'm allowed to have an emotional relationship with someone else or a physical relationship with someone else. Yeah. कुछ couples हैं जो बोलते हैं कि हम एक दूसरे को बताएंगे, कुछ हैं जो बोलते हैं नहीं बताएंगे. My opinion is, till the time you both know what is happening, it's fine. Yeah. But ये नहीं करना है that you don't talk about an open marriage but you behave like you're having an open marriage, because then that's betrayal. And there are so many people with emotional infidelity जो आपने बोला, there are so many people, even individual clients who will come to me and they will say there was no cheating but I feel betrayed. Because you start to feel like, am I not enough? Yeah. मेरे से क्यों नहीं बात करी, किसी और से इमोशनल रिलेशनशिप बनने की भी क्या जरूरत थी? लोग एक्चुअली इमोशनल इनफिडेलिटी एज अ कॉन्सेप्ट जानते भी नहीं है. मेरे ख्याल से ये टर्म भी नहीं पता होगी कि ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव अ रिलेशनशिप विद समबडी एल्स फिजिकली, बट लाइक शी सेड, आप अपने पार्टनर के अलावा अगर किसी और से बात करके वो धक धक फील करते हो, एक्साइटेड फील करते हो, सो मे बी जो चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी वो कहीं और हो रही है. एंड मे बी दैट इज़ वॉट वी नीड टू फिगर आउट कि वाई इज़ दिस हैपनिंग. What is those little things? No, अब मैं एज अ कपल थेरेपिस्ट पूछती हूँ और लोग देख रहे हैं, क्या वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए एक दूसरे के लिए टू रियली हैव, आई वोंट से सेव अ मैरिज, बट टू जस्ट हैव अ हैप्पी मैरिज. हमें कई बार हम आगे पीछे हो जाते हैं, लाइफ चेंज हो रही है, ताकि हम साथ रहें. मतलब लिटिल थिंग्स दैट यू थिंक कैन रियली गिव दैट लाइफ टू अ मैरिज. अपने आप से ये पूछो कि मैं अपने पार्टनर को क्या दे रहा हूँ या क्या दे रही हूँ, बजाय कि मेरा पार्टनर मुझे क्या दे रहा है या क्या दे रही है. हमें कॉन्स्टेंटली आप किसी से भी पूछो, वाई आर यू इन दिस मैरिज, ही मेक्स मी सो हैप्पी, शी मेक्स मी सो हैप्पी, एंड व्हाट आर यू डूइंग? वो रिफ्लेक्शन नहीं है. सो कॉन्स्टेंटली से, हाउ कैन आई मेक माई पार्टनर्स लाइफ बेटर टुडे, व्हाट कैन आई डू फॉर दिस मंथ दैट विल मेक देम हैप्पी, दैट विल मेक देयर लाइफ ईजी, हाउ कैन आई सरप्राइज देम, हाउ कैन आई शो देम लव. अगर दोनों पार्टनर कॉन्स्टेंटली ये सोचें कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, तो सेल्फिशनेस हट जाएगी, कॉम्प्रोमाइज बढ़ जाएगा. छोटी छोटी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम बेसिक हाउ वॉज योर डे, पर फोन स्क्रॉल करते हुए नहीं, हाउ वॉज योर डे, अच्छा फिर ये नहीं, हाउ वॉज योर डे, look into each other's eyes, have that conversation, don't behave like you are strangers or you are friends, behave like you are partners and be genuinely interested. Physical touch, बाहर गए हैं, हाथ पकड़ लो, मूवी देख रहे हैं, put your head on the other person's lap, थोड़ा physical touch रखो. Say when आप घर से बाहर निकल रहे हैं, kiss them goodbye. Kisses longer than 6 seconds release oxytocin, again love hormone. Hugs more than 20 seconds release oxytocin, again love. हमारा hug, आजकल husband wives एक दूसरे को side hug दे रहे हैं. Yes. Why not? You know, ये this is supposed to be the greatest person of your life. Yeah. इनको पूरा hug दो. Yeah.
एक्ट ऑफ सर्विस एक ऐसी लव लैंग्वेज है. मान लो एक इंसान को लॉन्ड्री करना पसंद नहीं है, कर दो उनके लिए एक बार लॉन्ड्री, बहुत खुश हो जाएंगे, याद रखेंगे जीवन भर इस इंसान ने, मेरे पार्टनर ने मेरे लिए ये करा. अ बेसिक थिंग, कॉम्प्लीमेंट. अप्रिसिएशन इज लाइक ऑक्सीजन ऑफ रिलेशनशिप्स. हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते हैं. थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो, आपने ये काम इतने ब्यूटीफुली करा. कोई छोटा भी काम कर दिया, मान लो जाले झाड़ दिए हो, बजाय कि ये सोचना इसका भी तो घर है, इसकी भी तो छत साफ हुई, नहीं, थैंक यू बोलो. आपने मान लो किसी ने एक दिन बच्चों को स्कूल ले गए, या रेगुलरली लेके जाते हैं, रेगुलरली लेके जाते हैं का मतलब ये थोड़ी कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड. नहीं, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, द किड्स लव यू, आई लव यू. दैट अप्रिसिएशन, दैट रिस्पेक्ट. एंड लास्टली, हम ये बहुत सुनते हैं, जैसे आपने भी बोला ना कि बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो हर हफ्ते या हो सके तो रोज़ कोई ऐसी बातें करो जो चोर रिलेटेड और टास्क रिलेटेड ना हो. घर, इन लॉज, बच्चे, गाड़ी, फाइनेंसेस, इसके सिवाय वो बातें करो जो आप शादी करने से पहले कर रहे थे. क्योंकि रिलेशनशिप के भी बहुत स्टेजेस आते हैं. Even pre-children and post-children, if you decide to have children, they're two different marriages. They're not the same marriage. Yeah. Some quick question, and I'm sure a lot of people would want to know this. हम अक्सर बोलते हैं red flags की बहुत बात होती है. Some clear red flags. For example, अगर कोई pre-marriage state पे है, अभी शादी करनी है, वैसे ही डरते हैं आजकल लोग शादी करने से. What are those red flags that you think is like run away, don't do it? पहले ही दिख जाता है क्योंकि ये एक red flag आ रहा है. वो लगे रहो मुन्ना भाई में उसने बोला था ना कि देखना वेटर को कैसे बुलाता है, छिट छिट करके या भैया बोल के, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू. वहाँ से बात शुरू होती है. इंसान आपके सिवाय, कोई इंसान जिससे उसे कुछ ना मिले, उससे कैसे बात कर रहा है? आपसे तो प्यार मोहब्बत मिल जाएगी, शादी मिल जाएगा, सेक्स मिल जाएगा, फैमिली मिल जाएगी. वो इंसान जो उसे कुछ नहीं दे सकता, प्लीज़ थैंक यू है क्या? सिर झुक सकता है क्या? ऐसे लोग हमने देखे मंदिर गुरुद्वारे में सिर झुका लेंगे, दूसरे इंसान के सामने सिर नहीं झुकाएंगे. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. सो वन, हाउ आर दे ट्रीटिंग अदर पीपल अराउंड यू? सेकेंड, जब उनका मूड खराब है, बहुत बार मूड खराब होएगा, हाउ आर दे बिहेविंग? अच्छे मूड में मैंने आपसे प्यार से बात करी, आपने मुझसे प्यार से बात करी, ये तो कोई भी कर सकता है. खराब मूड में कैसे हैं वो? अग्रेशन है, साइलेंस और सॉलिट्यूड है, बात करके कम्युनिकेट कर रहे हैं कि देखो मेरा मूड खराब है, ये हुआ, मैं आपसे कल बात करूंगी या करूंगा. कम्युनिकेशन है कि नहीं? नेक्स्ट, अब्यूज़ का थोड़े बहुत साइंस देखने की कोशिश करें. उनसे पूछें क्या कभी किसी ने उनको मारा है, क्या कभी उन्होंने अपने पेरेंट्स के बीच में कुछ देखा है, क्या उनका मन करता है अब्यूज़ का. अगेन, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल. ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं, व्हाई डिड देयर लास्ट रिलेशनशिप्स नॉट वर्क आउट? Of course, अब हम तो सब कुछ फेस वैल्यू पे लेंगे. We don't know if the person is saying the truth, but let's believe them for the benefit of the doubt. Why did the last relationships not work out? How does a person talk about their exes? गंदी तरह बात करते हैं या रिस्पेक्टफुली बात करते हैं? आइडियली हम चाहते हैं कि चाहे जो भी रीज़न हुआ हो ब्रेकअप का, डिवोर्स का, आप रिस्पेक्ट रखो थोड़ी, खुद के लिए भी और उनके लिए भी. That is a red flag. Then, how many decisions are they able to make themselves? और कितने डिसीजन के लिए पापा बता दो, मम्मी बता दो. Yes, that's true. अगर आप एक शादी करने लायक अडल्ट हैं, शादी चलाने लायक अडल्ट हैं, तो फिर आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि आपको हर बात के लिए मम्मी पापा करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स टू नो कि कितनी डिपेंडेंसी पेरेंट्स और इन लॉज पे रहे. एंड बाकी आते हैं फिर आपके नॉन नेगोशिएबल्स. लेट्स से इफ यू डू नॉट वांट योर पार्टनर टू बी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, अगर आपको दिख गया है कि वो ड्रिंक या स्मोक करते हैं, खुद बता रहे हैं, तो वो रेड फ्लैग है फिर आपके लिए. आपको लग रहा है शादी के बाद चेंज हो जाएगा, नहीं होगा. आपको लग रहा है मेरे बोलने से छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा. हैबिट्स किसी और के बोलने से कभी चेंज नहीं होती, वो खुद के माइंड से ही होती हैं. लेट्स से चिल्ड्रन, वन पार्टनर डजंट वांट चिल्ड्रन, वन पार्टनर वांट्स वन चाइल्ड ओनली, वन पार्टनर वांट्स मल्टीपल चिल्ड्रन. बात करो और ये मत सोचो माइंड चेंज कर देंगे. माइंड चेंज पे मत जाओ. डोंट डेट फॉर पोटेंशियल, डोंट मैरी फॉर पोटेंशियल. सी द पर्सन एज दे आर टुडे. Yes, we might grow, we might heal, but you can't think of a future and then say कि अच्छा ये बदल देंगे. Talk to them about mental health. How do they look at it? Do they believe it's as important as physical health? Do they believe that physical health and mental health are intertwined, एक दूसरे को अफेक्ट होते हैं? क्या वो ये मान सकते हैं कि माइग्रेन, पसीना, पैनिक अटैक मेंटली आ सकता है?
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें आपको मेंटली स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। मान लो कोई और आपका नॉन नेगोशिएबल है, उस बारे में भी उनसे बात करो। जैसे सम पीपल वांट टू हैव न्यूक्लियर फैमिली, दे डोंट वांट टू स्टे विद इन लॉज। अगर आपके पार्टनर ने बोला है कि शादी कर लेते हैं, 1 साल बाद सोचेंगे सोचेंगे या 1 साल बाद पक्का से मूव आउट कर लेंगे, नो, अभी देखो, आज का देखो। अगर वो आज रेडी हैं तो ठीक है। कुछ एक फैमिली जैसी है जहाँ पे आप चाहते हैं टू हैव अ बिग फैमिली, यू वांट टू बी अराउंड जॉइंट फैमिली। उस केस में अगर दूसरा पार्टनर बोल रहा है मुझे न्यूक्लियर चाहिए, तो नहीं, आपको तो जॉइंट फैमिली चाहिए ना। यू वांट टू हैव एल्डर्स, चिल्ड्रन, अदर पीपल अराउंड यू, देन व्हाई नॉट। तो इवन करियर, लेट्स से इफ यू आर एम्बिशियस, दे आर ऑल्सो एम्बिशियस, अगर दोनों लोग एम्बिशियस है तो कैसे संभालेंगे शादी? अगर दोनों लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? फाइनेंसेस, पूछो कौन किसका कितना डेट है, किसके सेविंग्स का हैबिट कैसा है, इन्वेस्टमेंट का हैबिट कैसा है। अ लॉट ऑफ पीपल विल मैरी सेइंग कि हमें तो पता ही नहीं था कि सैलरी इतनी है, बाद में पता चला। बोलो, दिखाओ मेरे को सैलरी स्टेटमेंट, दिखाओ मेरे को बैंक स्टेटमेंट, दोनों दिखाओ एक दूसरे को। Be honest about it. Money is not everything, but money is very important. It is. Otherwise, it becomes a problem later. क्योंकि the only thing that is not discussed is money. Yeah. So अपने जो नॉन नेगोशिएबल्स हैं वो सोचो कि ये चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, चेंज नहीं करना है। Yeah. उसके सिवाय बेसिक चीज़ें। Yeah. और अगर कुछ समझ में आ रहा है तो अपने आप को ना उल्टा कन्विंस मत करो। ट्रस्ट योर गट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इफ़ यू आर अडल्ट इनफ टू मैरी, यू आर ऑल्सो अडल्ट इनफ टू हैव योर ओन ब्रेन दैट वर्क्स फाइन। और रेड फ्लैग का पूरा एक डायरेक्टरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि द पॉइंट इज दैट हम लोग का गट कह रहा होता है कि कुछ खराब है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते चलते हैं, एंड देन वन डे इट्स एक विस्फोट। जैसे आपने सुना होगा ना, बहुत लोगों को बोलते हैं कि इफ़ यू हैव चिल्ड्रन देन एवरीथिंग विल बिकम फाइन। या बच्चे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनते हैं हर बार। ये, और हम बोलते हैं कि जो मैरिज बिफोर किड्स हो रहा है वो वही चीज़ 100 हो जाएगी मैरिज आफ्टर किड्स। ये चीज़ वेडिंग के लिए भी ट्रू है। जो आपके रिलेशनशिप में आज 10 है वो फिर 500 हो जाएगा आफ्टर द वेडिंग। तो ये मत सोचो कि ये अगर शादी कर लेंगे तो ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। पहले सॉर्ट करो, साथ में सॉर्ट करो। किस बात की जल्दी है? पूरी लाइफ साथ में बितानी है। That is true. और बच्चा solution नहीं है, now that she mentioned. Shaurya, a lot of women who are struggling right now and probably watching this video and don't know what to do. Maybe some tips for them. अब कई लोग हैं जो शादी से नहीं निकल सकते, चाहे कुछ भी reason रहा हो या हो, क्या कर सकते हैं? If there is abuse also, say helpless है, और what can they do to at least feel better about life, if nothing else? I very strongly say if there's abuse, leave. I very very strongly say, I understand आसान नहीं है, पर लाइफ में कोई भी चीज़ जो वर्थ इट है वो आसान नहीं होती। I very very strongly say if there is abuse, leave, please leave. आपको करेज गैदर करना पड़ेगा, आपको लीगल हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको बहुत गंदे सिचुएशंस में रहना पड़ेगा। There is a beautiful Netflix show, it's called Maid. I don't know if you watched it. Yeah. And I'm not saying that you have to go through that, but irrespective of how hard it is, please separate. Please. अब मान लेते हैं कि आपने सब कोशिश कर ली और अभी नहीं हो पा रहा है। अपना एक सुरक्षा कवच बनाओ धीरे धीरे। सबसे पहले start with financial only. Maybe even if then there is no societal help, you might have the courage to leave. तो धीरे धीरे कोशिश करो। अभी थैंकफुली कुछ रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, क्योंकि हमने तो अभी उसमें देखा आप घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हो। अगर वो हो सके तो कोशिश करो। अगर हो सके कुछ पढ़ लो, कुछ किसी से सुन लो, रेडियो सुन लो, यूट्यूब देख लो, कुछ सीख के कोशिश करो, थोड़ा जमा करो, फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करो, हल्का सा भी बात बन जाएगी। ऑन ट्राई करो टू सीक मेंटल हेल्थ हेल्प। मान लीजिए अगर आप एक अब्यूजिव मैरिज में, हो सकता है यू आर नॉट इवन एबल टू अफोर्ड थेरेपी। NGOs हैं जो प्रो बोनो काउंसलिंग देते हैं। RCI की एक लिस्ट है, उनकी वेबसाइट पे है, वहाँ पे भी प्रो बोनो काउंसलिंग मिलती है और वो वेरीफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं। बट कोशिश करो आपको वो मेंटल हेल्थ हेल्प मिले। बहुत बार ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स भी मिल रहे हैं। देयर आर अदर पीपल हु माइट बी गोइंग थ्रू दिस। फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, रेडिट पे ग्रुप्स हैं, अगर हो सके जस्ट ताकि आपको ये पता हो कि आप अकेले नहीं हैं। There are more people like you surviving,
और वो भी कोशिश कर रहे हैं. एंड यूजुअली मुझे लगता है करेज उन्हीं से आता है जो आप जैसी जर्नी चल रहे होते हैं. हाँ दैट्स ट्रू. हाँ, क्योंकि आपको ये पता है कि एक तो आपने रिलेट कर लिया किसी से, और सेकंड आपको ये पता है कि क्या पता अगर इन्होंने करा हो तो क्या पता मैं भी कर लूँ, क्या पता. फाइनली शौर्या, किसी ने अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, हाउ डू वी टेल समबडी, या किसी को कैसे पता होगा कि मुझे अभी थेरेपी और कपल थेरेपी की जरूरत है? लाइक व्हेन डू आई नो दैट ओके मे बी आई शुड गो टू अ कपल थेरेपिस्ट? डिवोर्स के से पहले. Like most of the couples who see me, unfortunately, first session में they come and say हमको डिवोर्स लेना है, अब आप हमारे लास्ट होप हैं. ओ अच्छा, तो जब डिसाइडेड डिवोर्स लेना है तो फिर आप ओके, दैट्स नाइस. And research has found that couples will stay unhappy for up to 7 years before they seek help. 7 साल आप परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, खुद तो परेशान हैं ही, एक दूसरे को भी परेशान कर दिया. Don't wait that long. Couples therapist or couples therapy or even individual therapy is two-way, either preventive or curative. Preventive में क्या है? Preventive में I will be like a maybe like a nutritionist or like a gym trainer. I will help them say कि अगर आप ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से शायद आपकी ग्रोथ अटक रही है या आपको स्टक फील हो रहा है, you can make these changes and you will feel better. We'll help them derive insights from their both nature and nurture. So parenting as well, experiences as well, their future goals, their fears, their insecurities, their drives, motivations, सब कुछ हम देखेंगे and we'll help them. ये है एक प्रिवेंटिव वे जहाँ पे हम एक जिम ट्रेनर हैं. दूसरा है क्यूरेटिव जहाँ पे हम एक डॉक्टर हैं कि आपको चोट लग गई है, अब आपको केयर की ज़रूरत है, मतलब प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम के बाद आप आ रहे हैं. दोनों तरह वैलिड है, दोनों तरह नॉर्मल है. तो एक लाइन में व्हेन टू गो टू थेरेपी, एनी टाइम, वेन एवर यू वॉन्ट, एब्सोल्युटली गुड. द थेरेपिस्ट विल बी एबल टू हेल्प यू. प्रिवेंटिव में मोस्टली सेशंस कम लगते हैं, क्यूरेटिव में मोस्टली सेशंस ज़्यादा लगते हैं. अब बात करते हैं कपल्स थेरेपी इन पर्टिकुलर की. If research is saying that couples wait up to 7 years before they seek help, then my first suggestion is don't try to wait until a crisis situation. वेट मत कीजिए कि वो थप्पड़ पड़े, वेट मत कीजिए कि आपका डिवोर्स का मन करे, वेट मत कीजिए कि बच्चे, आपको पता है आई हैव कपल्स इन देयर 40s, उनके बच्चों ने भेजा है कि प्लीज ठीक हो कर आओ. हाँ, कि ये कपल्स थेरेपिस्ट हैं और आप जाइए. And there are couples in their late 40s who are like children in their teenage, like maybe they found my Instagram or something and they said कि आप जाइए. Nice. वेट मत कीजिए कि आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कुछ बचा ही ना हो. वेट मत कीजिए कि आप लोग बिल्कुल बात करना बंद कर दें. वेट मत कीजिए कि आप लोग अलग अलग घर में सेपरेट हो गए हैं. ट्राई टू फिक्स, मैनेज द प्रॉब्लम इन द मोमेंट. इसलिए मी एंड माई टीम वी ऑल्सो रन प्री मैरिटल कोचिंग प्रोग्राम्स. If you're thinking of marrying someone, if you're engaged to be married, there are many things जो आपको शायद आप डिस्कस ना कर पाओ openly, but a couples therapist can provide you with that safe space कि देखो शादी के बाद ये मुसीबतें आएंगी. वो शोले में बोलता है ना कि क्या क्या मुसीबतें आएंगी, but we can help them that in the first 2-3 years this is what will happen, then this will happen, then this will happen according to your age, life stage, finances, families. The point is, you want to learn about yourself, you want to help yourself. You want to learn about your partner, you want to help your partner. You want to strengthen your marriage, you want to have that love again, you want to feel connected again, emotionally, physically, mentally, sexually, financially, everything. Don't wait for that breakdown, don't wait for that rupture. Yep. You can go to individual therapy or couples therapy at any time and try to not stigmatize it in your own head. आधी बार हम अपने आप को ही रोक लेते हैं, मन कर रहा होता है, बट देन वी थिंक कि पता नहीं वो कैसे हेल्प करेंगे, कितना हेल्प करेंगे, वो स्ट्रेंजर हैं. वो इसीलिए आपकी हेल्प कर सकते हैं. Yeah. अगर वो फैमिली मेम्बर होंगे, फ्रेंड होंगे, कोवर्कर होंगे, तो वो चाह के भी आपके साथ ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएंगे. That's true. अगर मान लीजिए एक कपल है, आप किसी एक पार्टनर के पेरेंट्स से बात करते हैं, चाहे वो कितने ही मैच्योर हो, कितने ही इंटेलिजेंट हो, वो पहले आपकी प्रोटेक्शन चाहेंगे आपके पार्टनर की बाद में, क्योंकि यू आर देयर फर्स्ट चाइल्ड. That's true. तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं आएगी. अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फ्रेंड भी यही बोलेगा कि अरे यू आर मोर इम्पोर्टेंट टू मी. But a couples therapist is going to be neutral. Couples therapist will say you are not important, you are not important, your dynamic is important. For me, all I want is that the couple who takes therapy or who visits me, I'm able to help them understand each other better. They feel safe, they don't feel that I'm taking a side, and of course you have to work hard. That comes with training. We are trained for that.
वी आर टोल्ड कि कैसे साइड नहीं लेनी, कैसे न्यूट्रली देखना है, कैसे एक मिडल ग्राउंड फाइंड करो। मिडल ग्राउंड बहुत सारी चीज़ों में आप फाइंड कर सकते हैं, कुछ एक चीज़ों में हाँ हमें ये भी बताना पड़ता है कि ये इस पार्टनर के लिए नॉन नेगोशिएबल है, ये इस पार्टनर के लिए नॉन नेगोशिएबल है। But that's what you trained for, and I think Yes. that's what a therapist, a psychologist is all about. और मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज़ जो बोली है, I've heard and I've seen people जो अब एक दूसरे को शादी पे गिफ्ट ही शादी से पहले एक प्री मैरिटल काउंसलिंग सेशन दे देते हैं कि शादी होने से पहले ही एक कपल एक थेरेपिस्ट के पास जाए, अपने नॉन नेगोशिएबल्स, अपने फियर्स और एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री कैसे बेटर हो वो चीज़ सीख कर आए। अब बहुत चीज़ें तो आप सीखोगे बाद में, बट वो क्लैरिटी मिल जाती है। एक्चुअली फाइनल क्वेश्चन आप पूछूंगी बिकॉज हम लोग इस पर बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पे अभी सेल्फ प्रोक्लेम्ड थेरेपिस्ट भी हैं, कोचेस भी हैं, और वो लोग कपल्स को प्यार भी दे रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड पीपल हु आर कंज्यूमिंग दिस कंटेंट डोंट इवन नो कि एक असली साइकोलॉजिस्ट वो है जो ट्रेन होकर आ रहा है, पढ़कर आ रहा है। और बाकी तो सोशल मीडिया पे अब हर कोई एक्सपर्ट है ही। How do we know what to follow on social media, especially when it comes to, you've seen spirituality, boom, everybody is a guru, everybody is a tarot reader. You talk about legal, everybody is a legal expert. वही चीज़ अब साइकोलॉजी के साथ भी हो गई है, एवरीबडी सेल्फ प्रोक्लेम्ड हेल्प। ये वहाँ पे होता है जहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं होती हैं गवर्न करने के लिए, जो अभी नहीं है हमारे पास इंडिया में। But I will say that if you're looking for a psychologist for counseling or psychotherapy, they need to have a minimum of a master's degree, MA or MSc in psychology from a UGC recognized university in India. It can be MA or MSc psychology from abroad as well, which may or may not be UGC recognized. But एक master's degree check करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि है या नहीं है, तो उनके LinkedIn पे जाओ। जिसके पास डिग्री है वो छाती ठोक के बोलेगा मेरे पास डिग्री है, क्योंकि उसने मेहनत करी है वो डिग्री के लिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है डिग्री है कि नहीं है, तो शायद नहीं है। फिर मान लो लिंक्डइन पे भी हमने देखा है बहुत लोग क्या लिखेंगे, साइकोलॉजी और फिर यूनिवर्सिटी लिख देंगे, वहाँ साल नहीं लिखेंगे, कौन से साल में किया, कब किया। तो ये तो कोई भी कभी भी लिख दे, चेक करो। नहीं अगर लिख पा रहे हैं, बहुत लोग किसी और वजह से नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर आप उनको DM करके पूछो कि डू यू हैव अ मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी। एंड जिसके पास होगी वो बहुत अच्छे से आपको हाँ भी बताएंगे, वो ये भी बताएंगे कब करी, कहाँ से करी, क्या स्पेशलाइजेशन थी। फॉलो करने के लिए सोशल मीडिया पे जो मन को अच्छा लगे फॉलो कर लो। यू कैन फॉलो एनीवन ऑन एनीवेयर, बट इफ़ यू आर टेकिंग सर्विसेज यू प्रोबेबली डिजर्व समवन हु विल सी यू एंड हियर यू आउट ऑफ ट्रेनिंग, रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च एंड अ फुल फ्लेजेड डिग्री प्रोग्राम। 3 महीने के कोर्स तो आप खुद भी कर सकते हैं, फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। और स्पेशली जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो और जहाँ पे आपकी लाइफ का सवाल है, वे यू लुकिंग फॉर सोल्यूशन फॉर अ हैप्पियर लाइफ, प्लीज ट्रस्ट पीपल हु आर ट्रेन टू डू सो। शौर्या, थैंक यू। दिस कॉन्वर्सेशन प्रॉब्ली वुड बी माई लॉन्गेस्ट, बट ये नेवर एंडिंग है, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है अराउंड मैरिजेस एंड सेपरेशन एंड पेन एंड ग्रीफ and a happier life, and I'm so glad that we could do this together. हम बहुत दिन से टच में थे, and I'm so glad शौर्या ने टाइम निकाला है, and she's joined us here. So thank you for joining in on the show. Thank you, Divya. Thank you for your great work, and thank you for having me. And thank you for just being you. That's शौर्या. And अगर इस पूरी कॉन्वर्जेशन में से थोड़ी सी भी चीज़ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फिट बैठती है, we're glad. You can always write in to me. You can always get in touch with शौर्या and find your happiness. खुशी ढूंढो, because जब ढूंढो तो मिल भी जाती है. Thank you for watching this. My name is Divya.